Hi everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount. And this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. I have written the code of all the handwritten notes here. If you want it, then you guys tell me on Telegram and Instagram. I will provide that link in the description box. You have just to pay a small amount. After that, you will get these handwritten notes, and these handwritten notes are very important for the point of your exam. And in handwritten notes में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो हैंड नोट्स है बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है. सो परचेज दीज हैंड नोट्स सो दैट you can get good marks in your exams. In this video, we will discuss important question of IGNOU MBA. Even before this, I have made videos on important question, but then those were chapter-wise videos of important question because that time was new MBA and there were changes in the syllabus and study material. Then we made videos on the basis of 10 years. So now the exam has been conducted many times. So now we have again analyzed the complete syllabus and made a PDF, and in this PDF we have tried to keep a few questions as soon as possible because you people have demanding that we should start a series with less questions. So I have again bought important questions which are very important for your exams. So without wasting any time, let's get started. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर MMPM 009 का, और यहाँ से हमारा जो थर्ड सेम का MMPM का स्पेशलाइजेशन है वो स्टार्ट होता है. सबसे पहले हम MMP 009 का स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे पहले इसी का एग्ज़ाम है, तो अभी हम एग्ज़ाम वाइज चलेंगे. इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आप लोगों को किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम है तो काइंडली आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं. इसके लिए हमने पास्ट 5 ईयर का एनालाइज किया क्योंकि इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई है, लेकिन वो मैंने चैप्टर वाइज बनाई थी और आप लोगों की डिमांड थी कि उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे. इस बार मैं क्वेश्चंस को कम से कम लेकर आऊँ, तो इसीलिए हमने अच्छे से दोबारा एनालाइज किया और हमने शॉर्ट्स क्वेश्चन बनाए हैं अब की बार. ये बेस्ड है हमारे इग्नू मटेरियल पर, और अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो आपके अच्छे से ग्रेड्स आ जाएंगे. बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं. अफोर्डेबल कॉस्ट में आप इनको परचेज कर सकते हो. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं MMPM 009 का, जो कि है आपका रिटेल मैनेजमेंट. तो इसमें ऐसे ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका MMPC 006 है, उसमें भी आपके एग्जाम में A और B क्वेश्चंस आते हैं. तो ऐसे ही इसी में भी आपके A और B दो पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं. तो जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका retailing include all activities involved in selling goods and services to consumer, and discuss this statement with reference to two types of traditional retailer formats and that you are familiar with. और सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बी पार्ट है, जैसे क्रिटिकली डिस्कस द कीज ग्रोथ ड्राइव्स इम्पैक्टिंग रिटेलर बिजनेस इन इंडिया. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके 2 पार्ट हैं. ऐसे ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में. देन उसके बाद जैसे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी एंड एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ साइकिलिंग ऑफ द रिटेलिंग अ प्रोसेस विद एन एग्जाम्पल. और बी पार्ट है, इसमें एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट चेन
स्टोर्स, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। ऐसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका व्हाई डिसाइडिंग मर्चेंटाइज मिक्स इज क्रिटिकल फॉर एवरी रिटेलर बिजनेस एंड एक्सप्लेन एज अ मर्चेंटाइज मैनेजर, डिस्कस द फैक्टर्स दैट यू हैव वुड कंसिडर इन डिसाइडिंग मर्चेंटाइज मिक्स फॉर अ कॉम्पिटेटिव प्राइस्ड यूनिसेक्स डिमांड ब्रांड्स टारगेटिंग यंगस्टर्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है। देन उसके बाद सेकंड जो है आपका पार्ट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन रिटेलर मिक्स एंड डज इट्स स्कोप ऑफ कवरेज डिफरेंस across small versus big retailers and support your answer with this example for its choice। ठीक है, ये एक जैसे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देन देखिए, जैसे 6th नंबर क्वेश्चन है आपका, ए पार्ट है इसमें, एलिस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील ऑफ रिटेलिंग, डिस्कस द डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व इन द व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी। ऐसे इसमें बी पार्ट है, डिफाइन फ्रेंचाइजिंग, एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल द स्कोप एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दैट फ्रेंचाइजिंग हैज़ ओवर अदर बिजनेस फॉर्मेट। तो ऐसे ही आपका 6th क्वेश्चन है। देखिए, जैसे 19th क्वेश्चन है इसमें, एनालाइज द फॉर्मेट्स ऑफ रिटेलर्स बेस्ड ऑन ऑनरशिप एज अ सिंगल स्टोर चेन and chain stores, lead stores and consumer cooperatives. What elements make store of operations and for retailers and know the role of a store operations in retailer business. Get a complete overview of role and composition of a stores, internal and external atmospheric। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। तो जैसे 23rd क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स फॉर्मेट्स एंड एग्जामाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर्स। ऐसे ही आपका 24th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मर्चेंटाइजिंग एंड डिस्क्राइब द मर्चेंटाइजिंग एंड डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग मर्चेंटाइजिंग। तो ये भी आपको करना है। देन लास्ट में आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट है इसमें ऑनलाइन रिटेलर्स, सेकंड है ऑफ प्राइस रिटेलर्स, देन उसके बाद थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मर्चेंटाइजिंग, देन इंटरनल एटमॉस्फेरिक। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इग्नू MBA जर्नी। आप लोगों ने देखा होगा इस PDF में मैंने क्वेश्चंस को बीच बीच से कराया है। अगर आप लोगों को ये पूरे क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आपको ये PDF परचेज़ करनी होगी। कैसे परचेज़ करनी है उसके लिए आपको मुझे टेलीग्राम पे DM करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी PDF को परचेज़ कर सकते हो और इनके आंसर के लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेज़ कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ओनली इन्हीं कोड्स के हैंड रिटन नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इन कोड से रिलेटेड कोई हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप अपना कोड मैच कर सकते हो और उसके बाद अपना जो भी कोड आपको चाहिए उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हो और आप अपने हैंड रिटन नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो का ढूंढने में परेशानी होती है तो आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.